Hello everyone, I Kriti Dwivedi on behalf of Animation and Filmmaking Club welcome you all on our very first podcast with Dr. Manish Dixit, HOD of CSE department on this special occasion of Teachers Day. पॉडकास्ट तो शूट करना ही था और टीचर्स डे से बेहतर दिन क्या ही हो सकता था. टॉप ऑफ इट वी हैव यू सर. Thank you, so nice of you for inviting me here. Thank you. इस पॉडकास्ट का एम यही रहेगा कि हम यूजफुल एंड फ्रूटफुल चीज़ें आपकी बातों से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. सो लेट्स बिगिन. सर, मे वी नो द मोमेंट्स यू ट्रेजर एज अ टीचर. So first of all, congratulations to you for this. You have been called me for the animation and film club and the first podcast. So maybe I am the founder one in this podcast. So thank you, so nice of you for calling me here. I had joined the institution in 1996, a long back, I think more than 28 years back. So when I joined here, right from the beginning, I have only one objective. That is, I had to see the satisfaction on the faces of my dear students. Because they are not my students, they are actually my young friends. So right from the beginning, there are so many things which normally happens when I am in the class. Sometimes the students are asking something and then I am able to give the answer properly. There is I can see the lot of satisfaction on the faces. I like it. When the student gets success, so sometimes they come to me for informing me their success. So at that time also the same thing is there, satisfaction on their faces. So any achievements done by the student, if the satisfaction is seen on their faces, I am always happy. So this is the first thing which I like. So anything else? नो सर. सर, आई हैव सीन आप काफ़ी बिजी थे एडमिशन प्रोसेस में. पेरेंट्स आपसे काफ़ी कंसल्ट करते हैं, तो मोस्ट कॉमन डाउट या क्वेरी उनका क्या होता है? Okay. So since last 6-7 years, I am in the counseling process. Also being a member of the counseling team, I have been working there more than 20 years. But being a chairman of the counseling committee, since last 4-5 years I am working there. Actually, the counseling is a very exhaustive process. Students के लिए this is very important. Whether they are choosing a career related to the computer science, related to the electronics, related to the mechanical engineering, whatever it is, the first objective is whether this career will be fruitful for them or not. So there are a lot of doubts, not only by the students but their parents also, because the career opportunities only one time comes in the life, and when you are able to grab it, then only the success can be there. So this is the first step where you have to decide your career. 12th के बाद जब आप JEE देते हैं, normally if you are succeed in JEE, if you are having a good rank in JEE, तो बहुत अच्छी बात है. You very easily you are able to take the decision. But sometime if your rank is somehow not up to the mark, then it is very crucial how to take the decision. उस समय पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान होते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन लेना चाहिए, कैसे स्टूडेंट सिलेक्ट करे इंस्टीट्यूशन को, कैसे ब्रांच को सिलेक्ट करे. But now the scenario has been changed. Earlier only few branches are there, the core branches, civil, mechanical, electrical, electronics is there, and CSE since last 20 years. But now there are a lot of branches of the emerging areas. जैसे कि computer science and design is there, AI is there, AI data science is there, AI machine learning is there, AI robotics is there, IoT is a good branch that is also there. Similarly, the computer science and business systems and mathematics and computing, this is also branch. So how to decide out of these branch, which are all because of the emerging areas branch. So their first question is how to rank these branches. उसमें बहुत easy concept है, क्योंकि ये सारी emerging areas की branches हैं, ये सभी computer science framework की हैं.
तो मोर और लेस आप ये समझ सकते हैं कि बेसिक फ्रेमवर्क जो है इन सभी ब्रांचेस का वो कंप्यूटर साइंस का है। बट नाउ द चॉइस इज यूज़र डिपेंडेंट ऑल्सो, क्योंकि आपको खुद को ये डिसीजन लेना है कि इन सभी ब्रांचेस में कौन सी चूज़ करें, तो बहुत कुछ यूज़र डिपेंडेंट चॉइस भी होती है। जैसे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट क्लियरली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द AI डेटा साइंस एंड AI मशीन लर्निंग। Some student like they had to choose AI, some AI data science and machine learning also. So accordingly, by looking the course curriculum, you will see that there are a lot of similarity in these curriculum. You can easily decide that what is to be chosen. So there are a lot of questions, but accordingly I can solve those questions. And again, the same thing is there. If they are satisfied, that is the only objective. Sir, how do you maintain balance between your personal and professional life? See, what happens, because it's very crucial sometime when you are young that you have to balance your personal and professional life. But as soon as you get the experience, जैसे जैसे आप you became older, तो ये अपने आप इनवाइटेबल है, ये अपने आप समझ में आता है कि कैसे बैलेंस करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ से आपका कैरियर डिसाइड होता है, साथ में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स मुझे करने थे वो मैं कितना कर पाया। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली द पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग ऑफ एवरीथिंग इज़ दैट यू हैव टू लिसन समथिंग केयरफुली। जब भी आप पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपको किसी की बात सुनना है तो बहुत केयरफुली सुनना है और उसको समझना है और फिर उसको आंसर करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, इफ़ यू आर एबल टू आंसर प्रॉपरली, योर लाइफ इज़ ऑलवेज बैलेंस। तो अगर सही चीज़ों पे सही समय पे सही निर्णय ले पाते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं होती है, और आप एक तरफ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर पाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर पाते हैं। And what about passion and teaching? Balance between them? See, everybody is having 24 hours, 24 घंटे और 365 दिन से ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है। सभी को उसी टाइम में मैनेजमेंट करना है। जब आपका पैशन की बात आती है या प्रोफेशनल कैरियर की बात आती है, पैशन के लिए भी वही टाइम है, उसी टाइम में से आपको निकालना है समय, और प्रोफेशनल कैरियर के लिए भी वही टाइम है, उसी में से आपको समय निकालना है। जैसे मेरी अगर बात करें, स्पेशली फॉर मी, आई लाइक गार्डनिंग, तो उसके लिए नॉर्मली द मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी सुटेबल। एज सुन एज यू वेक अप, मे बी 6 o'clock, 7 o'clock और मे बी बिफोर दैट 5 o'clock, गार्डनिंग आप 5 से लेकर 8 बजे तक आराम से कर सकते हैं। उसमें ना ही प्रोफेशनल कैरियर आता है, ना ही पर्सनल कैरियर आता है, ना ही फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दैट इज़ वन थिंग फॉर मी, इट इज़ गुड कि मुझे हॉबी है पेड़ लगाने की, पौधों में पानी देने की और उनके साथ, नेचर के साथ समय बिताने की। वो मैं आसानी से बिता पाता हूँ सुबह के 7-8 बजे तक। उसके बाद प्रोफेशनल कैरियर शुरू हो जाता है। तो सर, आप काफ़ी समय से इस टीचिंग फील्ड में हैं, आपने एवोल्यूशन देखा है कि चीज़ें कैसे बदली है समय के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन आप बताना चाहें कि आगे ऐसा होगा, हो सकता है? देखिए, टाइम इज़ ग्रेट और टाइम इज़ टाइम बिकॉज ऑफ इट इज़ चेंजिंग। समय इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वो बदल रहा है। इफ़ यू आर एबल टू कोप अप with you can step up with the time, then only you are success and satisfaction, both thing। समय बहुत तेज़ी से बदलता है और अब की जनरेशन अगर आप देखें या अभी का समय देखें तो वाकई इट्स ट्रेडिशनल टाइम हैज़ बीन चेंज ड्रास्टिकली और अब बहुत नया समय आ गया है। When I have joined in 1996, I remember there are only few computers were there because I did my BTech in computer science and engineering. So there were only few computers are there in the institution. कुछ 20-25 computers होते थे। बड़ा उनको सहेज के रखा जाता था, जैसे कि आप अपना लॉकर सहेज के रखते हैं, उसके की सहेज के रखते हैं, वैसे ही उसको बड़े साफ़ सुथरे कमरे में रखा जाता था। उसकी डस्टिंग होती थी, बहुत इजीली उसको टच नहीं करने दिया जाता था। उसको टच करना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी, तब आप उस पर काम कर सकते थे। बट नाउ यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। लैपटॉप है, इट्स अ कंप्यूटर आपके हाथ में है, मोबाइल है जो इसमें पूरी दुनिया आपके हाथ में है,
और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर मोबाइल आपके हाथ में है और अगर आपके पास इवन गाड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कैश, तब भी अगर मोबाइल आपके हाथ में, तो दुनिया आपके हाथ में है। इसी में पैसा भी है, इसी में मोबाइल भी है, इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसी में आपकी पूरी लाइफ इसी में समाई हुई है। तो दिस इज़ द चेंज विच वी आर लुकिंग। इसी तरीके से एकेडमिक्स में भी चेंज हो रहा है। अगर एकेडमिक्स की बात करें आप, तो जिस समय हम लोग ग्रेजुएट किए थे या फर्स्ट बैच जो यहाँ से पास आउट था, उस समय मुझे आई कैन रिकॉल कि एक स्टूडेंट्स को हम देखते थे जब, तो एक स्टूडेंट कंप्यूटर के सामने जब बैठता था तो वो पहले उसको प्रणाम करता था, उसके पैर छूता था, उसके बाद वो कंप्यूटर को ऑन करता था। आई जस्ट वांट टू डिस्कस द चेंज। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि मैंने कहा ये तो मशीन है, इसके क्यों आप प्रणाम करते हैं या ऐसा क्यों पैर छूते हैं इसके? तो बोला सर विश्वकर्मा जयंती भी होती है, लोग वर्कशॉप में भी पूजा करते हैं, हमारे लिए तो यही हथियार है और यही हमारे को आगे सक्सेस दिलाएगा, इसलिए मैं इसकी पैर के शो। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, बड़ी टचिंग थी। और उसने कि इतना मतलब उसकी जो इथिक्स थे इस बारे में मुझे बहुत अच्छे लगे। आज हम बात करते हैं तो आज वो हो सकता है ट्रेंड अब नहीं रहा हो, लेकिन नई जनरेशन में जो मुझे खासकर दिखता है कि अब तो बुक्स का भी ट्रेंड कम हो गया है, बच्चे पीडीएफ से पढ़ते हैं या आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं उससे पढ़ते हैं। तो चेंज इज़ इनवाइटेबल। देखिए चेंज होता है, समय के साथ दुनिया बदलती है, लेकिन अगर चेंज फ्रूटफुल रिजल्ट अगर आपको दे रहा है तो उस चेंज को आपको स्वीकार करना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज। तो अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं उसमें कि उनको बुक्स नहीं पढ़नी, उनको पीडीएफ से पढ़ना है, तो उनको बुक्स की पीडीएफ पढ़नी चाहिए रदर देन कि डायरेक्टली इंटरनेट से कुछ सर्च करें या पढ़ें। क्योंकि बुक्स की एक खास बात यही होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देती है। तो स्टूडेंट से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा या उनसे कहूंगा कि जो फ्रूटफुल चेंज हो उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ जाएं, लेकिन जो चेंज आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है उनको सिरे से निकालें और पुराने ट्रेडिशंस को बिल्कुल अपनाएं। ड्रॉबैक क्या कंसिडर करेंगे आप इवॉल्वमेंट का? देखिए जो जनरेशन इवॉल्वमेंट उसमें कोई भी ड्रॉबैक को मुझे लगता है कि नहीं देखना चाहिए, रदर देन हमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट ही देखने चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि चेंज इज़ इनवाइटेबल, चेंज हमेशा होता है, टाइम जैसे जैसे निकल रहा है और चेंज होना भी चाहिए। तो इनफैक्ट मुझे कोई ड्रॉबैक्स नहीं दिखते। जो भी एक्शन अगर स्टूडेंट या कोई भी नई जनरेशन लेती है तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमेशा देखने चाहिए और ड्रॉबैक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे कोई ड्रॉबैक्स नहीं दिखते हैं। मुझे ये जो है चेंज इनवाइटेबल अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग टू नो सर। सर मोस्ट क्रिएटिव एक्सक्यूज़ आपने किसी बच्चों से सुना हो बहाने बनाने का, काम कंप्लीट ना करने का? रोज़ सुनते हैं, सैकड़ों बच्चों से रोज़ सुनते हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट एक्सक्यूज़ कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, उसके एक्सक्यूज़ का कारण क्या है, उसको ज़रूर जानना चाहिए। उसके बाद हमें अपने डिसीजन पे या उसके रिजल्ट पे जाना चाहिए। एक्सक्यूज़ के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि वो एक्सक्यूज़ जेन्युइन नहीं है तो आप उसको आउटवर्ड रिजेक्ट करें। लेकिन अगर उसके एक्सक्यूज़ में कहीं भी आपको लग रहा है कि जेन्युइन एक्सक्यूज़ है तो उसको एक्सेप्ट करें। जैसे कि असाइनमेंट दिया, बच्चा नॉर्मली एक्सक्यूज़ क्या करता है कि मुझे सर समय नहीं मिल पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे घर में ये था। आप देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर टाइम उसने नहीं दिया है तो आप जज कर सकते हैं कि उसने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है और वो सिर्फ बहाने बना रहा है। लेकिन एक्सक्यूज़ अगर जेन्युइन है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे जो कॉमन एक्सक्यूज़ है वो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी यही है क्योंकि उसके बाद कोई और रीज़न बचता नहीं है। लेकिन बाकी सारे एक्सक्यूज़ जो हैं वो नहीं करना चाहिए कि मुझे ये काम था या वो काम था या ऐसा था या मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी। दैट इज़ एक्सक्यूज़ दैट कैन बी अवॉइडेड। सर आपकी कोई हॉबी या टैलेंट जो बच्चों को पता ना हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? देखिए हॉबी तो मैं बता ही चुका हूँ कि मेरा पैशन जो है गार्डनिंग है, वो तो आप पता ही लग गया है। और एज सच बच्चों से कुछ छिपा नहीं रहता। जैसे कि पेरेंट्स से भी कुछ छिपा नहीं रहता, सब कुछ रहता है, या टीचर से भी कुछ छिपा नहीं रहता, सब कुछ सामने रहता है। हाँ ये हो सकता है कि टीचर्स देख के अवॉइड कर दें या उसको समझने की कोशिश नहीं करें। लेकिन पिछले
30-40 साल के जब एक्सपीरियंस 30 साल का हो जाता है तो खासकर स्टूडेंट को देख के पता लग जाता है कि वो क्या एक्सक्यूज देगा या क्या उसका रीज़न हो सकता है, क्योंकि टीचर की निगाह से कुछ छिपता नहीं है। फिर भी मेरा कहना ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो स्टूडेंट के लिए भी, मतलब ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़नी चाहिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ये 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपने इन 4 सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या काम किया, क्योंकि if you are doing ordinary things, the success is also ordinary. If you are doing extraordinary thing, then the achievement will be there. तो अगर कुछ आपने extraordinary काम किया है तो उसका fruitful result निकलेगा। तो मेरी कोशिश है कि ये मैसेज सभी को, बच्चों को पहुँचे। Of course sir, why not? तो बच्चों का एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज हुई है एजुकेशन की तरफ? देखिए बच्चे, मेरी निगाह से अब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत समझदार स्टूडेंट आते हैं, और एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन हमेशा अपने कैलिबर से ज़्यादा जब होता है तभी उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अगर अपने कैलिबर में आप एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन तो आपके अचीवमेंट्स में ही बदल जाती है। एक्सपेक्टेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ से भी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपने प्रयास कितना किया, आपने ट्राई कितना किया, आपने कितने एफर्ट्स किए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल के बच्चों के जो एक्सपेक्टेशन है, ऑफ कोर्स उनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है ये हो कि हमको 4 साल ग्रेजुएशन में उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले प्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर ये होनी चाहिए कि आप खुश कैसे रहें, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। और हो सकता है कि हैप्पीनेस आपको शॉर्ट टर्म गोल से मिले या शॉर्ट टर्म आपके एक्सपेक्टेशन से मिले, या हो सकता है लॉन्ग टर्म पे आपको हैप्पीनेस। हमारे लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बाकी सब चीज़ें, कि जैसे हम प्रोफेसर हैं या हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ा घर है, ये सब जो है सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहला जो हैप्पीनेस है वो सबसे पहला अचीवमेंट और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, और वही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आप खुश कैसे रहें। हाँ सर, जन्माष्टमी के ओकेशन में मैंने ये स्पीच सुनी थी आपकी। हाँ यस, वो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि खुश रहना ज़िंदगी का पहली प्रायोरिटी है। सर, आपको ऐसा चांस मिले कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का जो आपने पहले ना पढ़ाया हो, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? टीचर्स नॉर्मली यही लाइक करते हैं कि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया हो, क्योंकि धीरे धीरे उसी में एक्सपर्टाइज होती है, तो वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाने को मिले। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, लाइफ में एक हमारे टीचर बोलते थे कि ज़िंदगी में जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मौका मिले तो। आपको कॉन्स्टिट्यूशन या मान के चलिए लॉ, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है लाइफ में, मतलब कई बार ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का मैं स्टडी करता हूँ, तो मुझे अगर मौका मिला तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहूँगा। सर, आपकी एडवाइस क्या होगी अपकमिंग जनरेशन ऑफ टीचर्स की टू नेविगेट स्टूडेंट्स? देखिए, जनरेशन जो है वो लगातार चेंज हो रही है, जैसा आपको बताया मैंने पहले। नए टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, नई फैकल्टी इंस्टीट्यूशन में भी ज्वाइन कर रही है, एंड दे आर ऑल वेरी गुड फैकल्टी। सब लोग जो है NITs IIT से PhD किए हुए फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं। वो नई जनरेशन है तो नया सीख के भी आ रहे हैं और नया करने की भी उनमें क्षमता है। मेरी उनको एडवाइस सिर्फ एक है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं तो इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने के बाद आपको एक ओनरशिप होनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन से आपको लगाव होना चाहिए। ना सिर्फ आपको उसमें अपना प्रोफेशनल कैरियर देखना चाहिए, बल्कि उससे लगाव होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब ग्रो करेगा तभी आप पर्सनली भी ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि हमारी पहचान इंडिविजुअली हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन से ही हमारी पहचान है। MITS इज़ अ रेप्यूटेड नेम इन दी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और हमें लोग इसी वजह से जानते हैं कि हम यहाँ प्रोफेसर हैं या यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई नया ज्वाइन करता है। तो उस पहचान को, जो आपकी इंडिविजुअल पहचान है, उसको आप
इंस्टीट्यूशन की पहचान में शामिल करें और इंस्टीट्यूशन की पहचान इतनी हो जाए कि आपको उसी नाम से आपको पहचाने लोग कि MITS की फैकल्टी है। तो मुझे लगता है कि ओनरशिप जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और नई फैकल्टी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन के प्रति जो है उनको ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन पे विश्वास रखें बल्कि ओनरशिप की एक ऐसी भावना उनके मन में होनी चाहिए जिससे कि इंस्टीट्यूशन का भी डेवलपमेंट हो और आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी हो। होप न्यू टीचर्स लर्न फ्रॉम दिस। सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको डायरी कलेक्शन का शौक है, तो हाउ ऑफन डू यू डायरी राइट आप टाइम? हाँ, ये लेकिन कैसे पता लगा सर? मैंने तो बताया नहीं किसी को। सर, मुझे उस दिन MITS डे के दिन अच्छा, पता लगा था। ओके, ये बात सही है। इश्कृति ने बहुत अच्छी बात ये पकड़ी है और मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स को भी मालूम है, सबको। मुझे डायरीज़ कलेक्शन का भी शौक़ है और लेदर की कोई चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें, तो उनका भी शौक़ है। मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ या कभी घूमने जाता हूँ तो वहाँ स्टेशनरी शॉप जो है वो ज़रूर सर्च करता हूँ। कोई आसपास ऐसी स्टेशनरी की शॉप है जहाँ पर डायरीज़ या कोई ऐसे पेन अच्छे मिल जाएं या लेदर की कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। तो जब भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर बाहर से ख़रीद के लाता हूँ और उसको अपने पास रखता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता मैं उसको क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़रूर ऐसी कोशिश करता हूँ कि मेरे कोई ख़ास लोग जो मिलने वाले हैं उनको भी मैं उसको गिफ्ट करूं। तो मैं ले आता हूं, उसके बाद मैं उनको गिफ्ट कर देता हूं। कुछ डायरीज अपने लिए संभाल के रखता हूं, कोई मौका मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ लिख लेता हूं। सो जेनरस ऑफ यू सर। सो सर, हैव यू बंक्ड क्लासेस? मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको ज़रूर कि लाइफ जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है। जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ है, हमारी भी स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही थी। और उस समय तो एंटरटेनमेंट के इतने साधन भी नहीं होते थे। आज आप सब कुछ, आपके पास एंटरटेनमेंट के साधन अवेलेबल हैं। आप घर में ही टीवी है, घर में ही आपको फिल्म थिएटर भी है, घर में ही आपके पास मोबाइल है और आप कोई भी फिल्म नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय एक ही साधन होता था, या तो आपको घूमना है, बाइक उठाई, दोस्तों के साथ घूमने चले गए। दूसरा एक मूवी देखने का शौक़ उस समय बहुत हुआ करता था लोगों को। तो हम लोगों का भी एक शौक़ था, हमारे ग्रुप का, या हमारे स्टूडेंट जो साथ में हमारे दोस्त लोग थे, कि हम लोग मूवी के लिए ऐसा कोशिश करते थे कि फर्स्ट शो हमको मूवी देखनी है। तो हम ज़रूर क्लास बंक करके जाते थे। क्योंकि मेरा भोपाल का एजुकेशन है तो वहीं हमारे कॉलेज के पास एक थिएटर हुआ करता था। हम कोशिश करते थे कि बंक करके जाएं तो फर्स्ट शो हम एक मूवी ज़रूर देखें, और ये अक्सर होता था। बतानी तो नहीं चाहिए थी ये बात, लेकिन मैंने बता दिया आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है एडमिशन इनटू IIT, उनका ड्रीम होता है, पर कुछ मार्क्स के कारण चीज़ें बिगड़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो आपके क्या व्यू है एक गैप के बारे में? देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन है जिसको हम शिक्षा कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। आपको लगातार ज़िंदगी में सीखना है। इंजीनियरिंग एजुकेशन की एक बहुत ख़ास बात है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन आपको एक माइंडसेट देता है। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है बल्कि ये कि प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करती है। इंजीनियरिंग एजुकेशन आपने IIT से की है, NIT से की है, या IIIT से की है, या आपने यूनिवर्सिटी से की है, या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से की है, या किसी और इंस्टीट्यूशन से की है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना माइंडसेट डेवलप किया है कि नहीं। अगर आप, हो सकता है किसी स्पेसिफिक लेवल पे, जैसे JEE की बात करें कि JEE में आप अपना उतना इनपुट नहीं दे पाए, क्योंकि JEE बहुत टफ एग्ज़ाम है और बहुत फोकस की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आप JEE के टाइम उतना अपना इनपुट नहीं दे पाए, अपने एफर्ट्स नहीं कर पाए, या आपका फोकस उतना नहीं कर पाया, जिससे आपको इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन में दिक्कत हुई, या आपको इंस्टीट्यूशन जिस लेवल का आप चाह रहे थे उस लेवल का इंस्टीट्यूशन नहीं मिला। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि इंजीनियरिंग माइंडसेट है। अगर आपने उस टाइम नहीं सोचा, अगर आपने फर्स्ट ईयर में सोच लिया ये बात, तो वहीं से अच्छा करना आप शुरू कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी नहीं सोच पाए, आपने सेकंड ईयर में सोच लिया, तो वहीं से आप अच्छा
करना शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस गैप को आप अपने एफर्ट से बिल्कुल ही मिटा सकते हैं। दूसरी बात, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन के गैप को, बल्कि आप अपनी ब्रांच के गैप को भी अपने एफर्ट से और अपने कैलिबर से मिटा सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, जैसा कि आजकल सिनारियो है, हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए या डेटा साइंस चाहिए या मशीन लर्निंग चाहिए। हो सकता है उस लेवल पे आपको नहीं मिल पाई या आपने कोई और कोर ब्रांच में ली, लेकिन उस ब्रांच के गैप को भी आप मिटा सकते हैं और आप उसी स्टूडेंट के इक्विवेलेंट थोड़ा सा पेंस लेंगे तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो इंजीनियरिंग एक माइंडसेट है, ये ध्यान रखिए, और डेली आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। इफ़ यू आर एबल टू लर्न डेली एंड यू आर easily you can grab it, then the opportunity, lot of opportunities are there, no problem at all. ओके सर, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट लाइफ से? ढेर सारी स्टोरीज होती हैं। एक मुझे याद है ज़रूर स्टोरी, अच्छी भी थी, उसमें एंजॉयमेंट भी था और वो एक फ्रूटफुल ऑब्जेक्टिव के लिए की थी। एक बार हम और हमारे आप अब तो देखते हैं आप लोग इंटर्नशिप वगैरह के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, आपको कंपनीज़ में जाके भी इंटर्नशिप मिल रही है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नाउ डेज। हम लोगों के टाइम में एक प्रोजेक्ट करना और एक इंटर्नशिप लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था। उसके लिए हमें याद है कि हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरा एक फ्रेंड, बाकी सारे फ्रेंड्स का रिज्यूमे लेके और बायोडाटा लेके एक इंदौर में एक बड़ी कंपनी थी, वहाँ पर हमने जाने का सोचा कि हम उस कंपनी में अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने, हमारे पास बाइक थी और घूमने का भी शौक था, हम 2 लोगों ने डिसाइड किया, उसमें पर्चियाँ उठा के डिसाइड हुआ कौन जाएगा ये सारे रिज्यूम लेके। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड, जो उसका नाम उसमें आया, वो आजकल मेरा फ्रेंड यूएस में है, और हम दोनों का नाम आया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाइक से जाएंगे। और हुआ यूँ कि जब हमें भोपाल से इंदौर तक का ट्रैवल करना था, और हुआ यूँ कि सुबह सुबह हम जब बाइक से जाने के लिए निकले तो उस समय ज़ोरदार बारिश हो रही थी और हमें जाना तो था ही, और सोचा तो हमारे लिए तो उस समय यंग लाइफ की ये खास बात रहती है कि हमें तो लगा कि बहुत अच्छा मौसम है और हमें ज़रूर जाना चाहिए। हम लोगों ने बाइक से दोनों तैयार हो गए, सारे रिज्यूम रख लिए साथ में और चल दिए बाइक से भोपाल से इंदौर की ओर। और उस समय तो रोड भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हमें पहुंचने में भी 6-7 घंटे मुझे लगता है शाम हो गई थी। और पूरे टाइम जब तक हम चले थे भोपाल से इंदौर पहुँचे थे, पूरे टाइम इट वॉज सो रेनिंग कि हम लोग खुद तो भीग गई, हमारे बायोडाटा भी सारे भीग गए। और फिर हमने उस दिन सोचा कि मतलब हमने कितना बड़ा रिस्क लिया, पूरे टाइम जो है भीग के आए और बीमार भी पड़ सकते थे, बाइक स्किड हो सकती थी। आज सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उस समय बहुत एंजॉय किया। और फिर फाइनली हमने उस कंपनी में मतलब रिज्यूम दिया, उसमें काफ़ी लोगों का जो है सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने इंटर्नशिप की। Okay. That is one of the story. There are so many stories, but this is the one which proves fruitful. तो सर अक्सर ये होता है कि प्लान्स बन जाते हैं घूमने के, कहीं जाने के, पर लास्ट मोमेंट में प्लान कैंसिल हो जाते हैं, फ्रेंड्स कर देते हैं। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या आपने कभी ड्रॉप किया है कोई प्लान? देखिए, प्लान जो है वो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि प्लान रोज़ बनते हैं और हर शाम को बनते हैं और हर सुबह जो है नया प्लान दूसरा एक माइंड में आ जाता है। तो प्लान बनना और प्लान कैंसिल होना स्टूडेंट लाइफ की बहुत अहम बात है। रोज़ बनते हैं क्योंकि प्लान ही आप लोग ऐसे बनाते हैं कि उनको कैंसिल करना पड़े। कोशिश ये कीजिए कि प्लान ऐसे बनाइए जो कैंसिल ना करना पड़े। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाइए, छोटे पास जाने के बनाइए। अब पहले ही दिन अगर गोवा घूमने का प्लान बनाएंगे तो कैंसिल होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिए कि आसपास पहले तिगरा जाइए, वहाँ का प्लान बनाइए, या आसपास ग्वालियर के घूमिए, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाइए। तो प्लान ही ऐसे ना बनाइए जो कैंसिल करना पड़े। थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस पॉडकास्ट विथ यू। लास्ट में आप 2 लाइन गानों से ख़त्म कर सकते हैं पॉडकास्ट। ओके, देखिए गाना वैसे तो मैं गाता नहीं हूँ, फिर भी 2 लाइन सुना सकता हूँ आपको। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा था. Thank you, Last में- thank you so nice of Ishkriti for having this interview. Thank you so nice of you. सर लास्ट में हमारे हैंडल्स में आप बोल दीजिए हाँ ऑडियंस ज़रूर. को. ये हमारे इस ग्रुप का एनिमेशन फिल्म मेकिंग क्लब का पहला पॉडकास्ट है. आप लोग ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और मुझे लगता है आगे आप और अच्छे पॉडकास्ट सुनेंगे. बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू. हो गया? Thank you. Thank you, sir.